I'll just go through the details of the budget so that we can cover that as quickly as possible. So when we talk about the budget, we are essentially talking about three accounts. These three accounts are the Consolidated Fund of India. The Consolidated Fund of India is the main account where if all the money that we are raising, or the main account in the sense that it is in the hands of the parliament. पूरा का पूरा पैसा जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, और इस from this account the government cannot even take a single rupee out, or cannot even put a single rupee in to this particular account without the authorization of the parliament. So this is an account which is quote unquote the most important account of the government, and the government is completely responsible for this money, in the sense that it needs to pass a budget. It needs the approval of the parliament to spend any money out of this particular account. So ये हमारा मेन अकाउंट है. देन दूसरा एक अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर you have the government is basically working as the banker. तो जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं तो it's a liability of the bank, and it has to pay an interest to us. Similarly, this is how it works when it comes to public account. यहाँ पर instead of a bank, we are giving the money to the government. For example, your parents might be saving money in small saving certificates. सो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर पैसा डालने का. देन यू हैव कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. एंड बाय द वे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है. सो यू डोंट नीड the government does not need the permission of the parliament. It is completely in the hands of the executive how to spend that money. जो contingency fund of India है, that is basically a fund to, as the word says, for contingencies. And for these contingencies, again, this is a portion of money which is in the hands of the president of India. ठीक है. तो एंड अगर ये इसके अंदर अराउंड 500 करोड़ होता है, अगर इसमें से कुछ पैसा खर्च होगा, सो इट कैन बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. then coming to the timeline of the budget, timeline, I'll just very quickly go through the timeline. I hope that you've gone through this. So when we talk about the timeline, you have the budget speech जो अभी फर्स्ट हुई थी, फिर उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले किए गए हैं. फिर उसके बाद यू हैव जनरल डिस्कशन. जनरल डिस्कशन जो होता है वो 3 से 4 दिन चलता है बजट. जैसे आज भी जनरल डिस्कशन चल रहा था, कल भी जनरल डिस्कशन चलेगा, बट जनरल डिस्कशन के टाइम पे वोटिंग नहीं होगी. if you've gone through what is happening in the parliament, तो पार्लियामेंट में वो रकस चल रहा है कि अदानी के ऊपर डिस्कशन करो रादर देन डिस्कशन ऑन दिस. तो ऑपोजिशन एक मोशन लेके आई है कि डिस्कस द इशू दैट वी वांट टू डिस्कस. तो अभी जनरल डिस्कशन वाला टाइम चल रहा है, बट जनरल डिस्कशन में कोई वोटिंग नहीं होगी. देन व्हाट विल हैपन इज दैट फॉर 3 to 4 weeks, so by till end of March probably, the houses will be adjourned, and this scrutiny will be done. क्योंकि हर मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा मांगा होगा. वी कॉल देम एज डिमांड फॉर ग्रांट्स. ठीक है. देयर आर सर्टेन डिमांड, देयर आर अराउंड 110 डिमांड फॉर ग्रांट्स इन अ बजट. सो हर मिनिस्ट्री जो पैसा मांग रही, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आस्क मनी फॉर योर pocket money, it's nothing but a demand for grant. And then take the case where your parents are assessing whether the money that you have asked is reasonable or not. So that is essentially your demand for grant. And this happens for 3 to 4 weeks, and there are 24 departmental committees which are going to look into these demands for grant. And once these demand for grants have been looked into, then comes the voting part. But remember, the voting part, again, this is something that I expect you to know, because this is hardcore polity. So if you are a little rusty with these concepts, then I would suggest that you go through parliament का जो chapter है. ठीक है. So there you'll find all the details.
So then you have voting for demand for grants. The voting for demand for grants mean that first there will be a demand, then उसके बाद voting होगी, फिर वो grant बनेगा. तो जो भी हर मिनिस्ट्री ने जो पैसा मांगा है उसके ऊपर डिस्कशन होगा. देन ईच पर्टिकुलर डिमांड फॉर ग्रांट विल हैव टू बी पास्ड. कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी सारे एक एक करके क्या कहते हैं ग्रांट को नहीं पास करते. कई बार हम ग्रुप्स में डिमांड को पास कर देते हैं. उसको कई बार क्या कहते हैं कैंगरू वाला मेथड बोल देते हैं. कई बार विदाउट इवन वोटिंग आप उस पर कर देते हो, क्या कहते हैं पास उस पर वोटिंग पे डाल देते हो, तो उसको गिलोटिन बोलते हैं. तो you can go through what are these different types of basically passing of the bill where discussion does not happen or discussion happens in kind of bunches. तो वो हमारा तरीका है. But this voting can only happen in Lok Sabha because of the fact that this is a money bill. ठीक है. बजट जो है, बजट में दो पोर्शन. when we talking about the budget, there's nothing called budget in the constitution. Instead of budget, what we have is called as annual financial statement. हमारा जो टर्म होता है वो होता है AFS, annual financial statement. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 के अंदर दे रखा है. और जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो देर आर टू बिल्स. वन इज फॉर मेकिंग योर एक्सपेंडिचर्स, द अदर इज फॉर बेसिकली योर रिसीट्स. तो एक्सपेंडिचर्स के लिए जो बिल पास किया था दैट इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन बिल, एंड रिसीट्स के लिए जो बिल पास किया था दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल. तो ये जो है, ये जो मैटर्स हैं, मनी मैटर्स जो हैं, इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं मनी बिल. ठीक है. एंड आई वुड अर्ज यू, जिनको नहीं पता कि ये मनी बिल क्या होता है, प्लीज रीड अबाउट इट एंड ऑल्सो रीड अबाउट फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2. when it comes to money bill and financial bill, you will see that Lok Sabha has an upper hand as compared to Rajya Sabha. तो स्पेशली अगर वो मनी बिल है, जैसे बजट जैसे जो दो बिल हैं अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस, तो राज्यसभा के पास तो सिर्फ कुछ अमेंडमेंट की भी पावर्स नहीं है. वो सिर्फ रेकमेंड कर सकता है चेंजेस, और अपने पास 14 डेज तक ही रख सकता है. 14 डेज तक भी अगर उसने नहीं करा तो इट विल बी डीम्ड एज पास. सो देयरफॉर दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आपको ये बिल्स पता हो कि कौन कौन से टाइप्स है. देन अब जब इसके ऊपर वोटिंग हो रही है तो क्या क्या ऑप्शंस है. यू हैव द ऑप्शन, पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है एक पॉलिसी कट का. पॉलिसी कट का मतलब होता है कि द पार्लियामेंट इन जनरल कंप्लीटली डिसअप्रूव्स द पॉलिसी. फॉर एग्जांपल कहते हैं किसी मिनिस्ट्री को से होम मिनिस्ट्री को अगर मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए मांगा हुआ है, तो और पार्लियामेंट कहता है नहीं, we don't need this 1000 crore rupees, we completely disapprove of this policy, then it will be reduced to ₹1. ठीक है. तो जितना भी रुपीज मांगा है, सपोज 1 लाख रुपए मांगे और वो आपको 1 रुपी दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी कट. बट रिमेंबर कि ये जो कट मोशंस हैं ये कभी पास नहीं हो सकते, बिकॉज ये पास होने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो पावर में ही नहीं है. गवर्नमेंट डजंट हैव सफिशिएंट नंबर्स. गवर्नमेंट डजंट हैव 273 people to back it. तो इसके साथ ही सेंचर हो जाएगा एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा. नेक्स्ट मोशन ही नो कॉन्फिडेंस का आएगा पार्लियामेंट के अंदर. सो दिस इज पॉलिसी कट. इकोनॉमी कट में आप क्या करते हो, सपोज आपने 1000 करोड़ रुपए मांगा और पार्लियामेंट कहता है, पार्लियामेंट में वोटिंग हो जाती है कि नहीं, इसको 5000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, सॉरी 500 करोड़ रुपए मिलना चाहिए. बाय द वे सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता. सो किसी ने मान लो 1 लाख करोड़ रुपीज मांगा और आप उसको कह रहे हो नहीं तुम 90 लाख करोड़ ही रख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कट, जहाँ पर यू कट द मनी बाय अमाउंट, अ सर्टेन अमाउंट, बट नॉट रिड्यूस इट टू ₹1. एंड टोकन कट होता है जहाँ पर आप ग्रीवियंस दिखाते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज आपने कहा कि आपने SC ST OBC के लिए कोई स्कीम लेके आए हैं, बट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कोई नहीं लाए. तो कोई एक जो पार्लियामेंट है वो कह रहा है कि नहीं भाई इसके लिए आप कोई स्कीम नहीं लेके आए, तो इसीलिए जो आप SC ST OBC के लिए जो स्कीम लेके आए उसमें हम 100 रुपये काटेंगे.
तो सपोज आपने 1000 रुपये मांगे थे तो उसमें से 100 रुपये काट के 900 रुपीज़ दिए जाएंगे। अगर आपने 1,00,000 रुपये मांगे थे तो उसमें से भी 100 रुपये कट के बाकी आपको मनी दिया जाएगा। सो इसके अंदर 100 रुपीज़ कटता है, इकोनॉमी कट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट कटता है, एंड पॉलिसी कट के अंदर कंप्लीट डिसअप्रूवल है पॉलिसी का। देन व्हेन इट कम्स टू अप्रूवल, व्हेन इट कम्स टू अप्रोप्रिएशन बिल इज बेसिकली, जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर्स के लिए ये बिल है। दिस इज वेयर यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिल। एंड जब आप यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल जब पास करते हो तो कोई अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैड दिस वोटिंग पोर्शन हेयर, सो देयर इज नो अमेंडमेंट दैट इज पॉसिबल है। आप पूरे के पूरे बिल को एक साथ पास करते हो या नहीं करते हो, एंड दिस हैज टू हैपन बिफोर 31st of March, because from the 1st of April the government has to start spending money. जस्ट इन केस अगर ये पैसा नहीं, अगर ये बजट बाई चांस कुछ भी एक्सीजेंसी है जिसकी वजह से नहीं पास हो पा रहा, स्पेशली बजट तो अब जाके पिछले 4-5 सालों से 1st of Feb को प्रेजेंट हो रहा है, पहले ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को प्रेजेंट होता था। तो व्हाट विल हैपन अगर ये if the budget is not, or if the appropriation bill is not passed by 31st of March, then what happens is कि आपको under vote on account, this is article 116 of the constitution, आपको पैसा मिल जाता था, हर मिनिस्ट्री को पैसा मिल जाता था 1/6 of whatever it's demanded। 1/6 इसलिए बिकॉज वो 1/6 जो है वो 2 months का पैसा है। तो सपोज किसी ने 1200 रुपये मांगे, तो 1200 रुपये मतलब 100 रुपीज़ पर मंथ, तो उसको 1/6 मतलब 2 months का पैसा, सो 200 रुपीज़ उसको पहले ही मिल जाएंगे 1st of April को। और फिर जब बजट पास हो जाएगा, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा, तो बाकी 1000 रुपये मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ वोट ऑन अकाउंट वर्क्स। आज के डेट में यूजुअली बजट पास हो जाता है बिफोर 31st। एंड देन यू हैव द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज द इनकम साइड ऑफ द बजट, वेयर यू हैव क्या कहते हैं, जहाँ पर ये जो इनकम रिसीट्स आती है उसको फाइनेंस कर रहे हैं। दिस मस्ट बी पास बाय 15th of April, एंड क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ बात नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर अमेंडमेंट अभी पॉसिबल है। देन रीडिंग ऑफ द बजट जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब बजट का भी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहाँ देखेंगे देयर आर दीज टर्म्स, बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। व्हाट आर बजट एस्टिमेट्स? बजट एस्टिमेट्स आर एसेंशियली कि जहाँ पर आप बोलते हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। रिमेंबर द बजट दैट हैज कम इज फॉर द ईयर is for the year 2023-24, which we also call as, इसको हम ये भी लिख सकते हैं FY24। So don't get confused papers के अंदर जब भी आए। So और जो ईयर अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं FY23। 22-23 चल रहा है, ये तो 31st मार्च तक चलेगा, ठीक है। बट जब हम अभी बजट बनाया है तो हमने बजट कौन से ईयर का बनाया है? बजट हमने बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, जो प्रेजेंट हुआ है, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी ये भूल जाओ कि ये वो क्या है। अब हमने ऐसे ही लास्ट ईयर बजट बनाया होगा, ठीक है, लास्ट ईयर फरवरी को 2022 को बजट बनाया था, तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए था? वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था। अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव एन असेसमेंट ऑफ द बजट कि अच्छा हमने सोचा ये था, हुआ ये है। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस ईयर्स, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका क्या हुआ, सरकार ने बोला था कि हम जो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो 1% रखेंगे, ठीक है। अब वो 1% इंक्रीज करने की बजाय वो 8% से इंक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सरकार को नहीं पता था कि भाई इतनी तेज़ी से फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इतनी तेज़ी से फर्टिलाइजर प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उनको खर्चा करना पड़ गया। उसने एनआरईजीए के लिए कम पैसा बचाया हुआ था, बट लोगों को एनआरईजीए में काम करना था, तो उसको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा वहाँ पर खर्च करना पड़ा। सो देयरफॉर वी विल कम अप विद समथिंग कॉल्ड एज अ रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो हमने अभी 1st of February को क्या कहते हैं, अभी ये रिवाइज एस्टिमेट दिया 1st of February 2023 को हमने रिवाइज एस्टिमेट दिया। बजट तो इस डेट को प्रेजेंट होता, बट रिवाइज एस्टिमेट यहाँ 23 में आया। एंड इसके जो एक्चुअल्स हैं, ठीक है, इसके जो एक्चुअल्स हैं वो कब होंगे? वो नेक्स्ट ईयर होंगे। लेट मी शो यू व्हाट। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है FY23, ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, बट देयर वाज अनदर फाइनेंशियल ईयर व्हिच वाज FY22, जिसका बजट आया था 1st of February 2021 को,
और ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, इसके हमारे पास अपडेटेड फिगर्स हैं। सो FY22 का हम एक्चुअल्स दे सकते हैं, और यही आप देखोगे बजट के अंदर। एंड इसका हम इसका रिवाइज एस्टिमेट्स लास्ट ईयर आया था, तो अब इसका एक्चुअल्स कब आएगा? इसका एक्चुअल्स आएगा 2024 के अंदर। और इसका रिवाइज एस्टिमेट कब आएगा? इसका रिवाइज एस्टिमेट कब आएगा? इसका रिवाइज एस्टिमेट आएगा, इसका रिवाइज एस्टिमेट 2024 में, एक्चुअल्स 2024 में, इसका रिवाइज एस्टिमेट 1 फरवरी 2024, और इसका एक्चुअल्स जो आएगा 1 फरवरी 2025 के। सो दिस इज हाउ द budget making process works in case of India. Then let's talk about the receipts and expenditure side. तो हमारी receipt side और expenditure side होती है budget के अंदर. When we talk about the receipt side, we are essentially when we are talking about receipt or expenditure side, we are actually talking about two things again: revenue receipts and capital receipts, and revenue expenditures and capital expenditures. Any kind of receipts which changes the asset and liability of the government is not changing the asset and liability. So no change in asset or liability, तो वो यहाँ पर आ जाएगा. और any change in asset or liability, तो वो यहाँ आ जाएगा. Same definition यहाँ है. एक there's another definition which is kind of a secondary, I would say. I've kind of devised it myself, but it does not hold 100%ly well, but kind of helps in understanding कि item कहाँ पर आनी चाहिए. That is कि ये जो items होंगी ये recurring in nature होंगी, और ये जो items होंगी ये non-recurring in nature होंगी. See, this is the foolproof way, but this is also another way in which you can understand it. So let us understand कि ये क्या है. So if you talk about receipts, I said कि कोई asset liability नहीं create होगी. तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा पैसा है जो एसेट और लाइबिलिटी ना क्रिएट करा है? फॉर एग्जांपल टैक्स का पैसा, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स एंड GST. नाउ येस्टरडे समवन हैड आस्क्ड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्स buoyancy एंड टैक्स इलास्टिसिटी. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि टैक्स buoyancy और टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है. That's why I did not cover it yesterday, because we are supposed to take it up today. So when we talk about taxes, तो अगर आप टैक्स इलास्टिसिटी की बात करते हैं या पहले टैक्स buoyancy की बात करते हैं, so you can are you able to type in the chat box? I think you can. So don't put it on question and answer, folks. If you have any questions, put it on the chat box, not because I've opened it on the second window. So when we talk about elasticity, when we talk about buoyancy, so the concept comes from essentially from physics. तो अगर ये कहता है कि अगर आपका GDP जो है, अगर आपका जो GDP जो है या आपकी इनकम जो है वो 1% से बढ़ती है, तो आपका टैक्स रेवेन्यूज जो है वो कितने परसेंट से बढ़ते हैं? ठीक है, तो अगर मेरी इनकम जो है, अगर कंट्री की इनकम जो है वो 1% से बढ़ी, तो उसकी वजह से मेरा GDP जो है वो कितने से बढ़ेगा. सो दैट एसेंशली टेल्स यू कि मैं अगर मेरा GDP बढ़ रहा है तो मेरा टैक्सेस बढ़ा है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस साल जब हम कह रहे हैं कि हमारा इस साल GDP जो है वो 6.5% से बढ़ेगा. अभी जब हम इकोनॉमिक सर्वे, जब हम बजट के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज द फिगर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. या फिर इनफैक्ट गवर्नमेंट इस बार कह रही है कि हमारा नॉमिनल GDP जो है वो 10.5% से बढ़ेगा. दैट मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी. इस साल का प्राइस, इस साल का करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी विल बी 10.5% अबव व्हाट प्रीवियस ईयर वाज. तो सपोज 2022-23 के अंदर अगर 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज नॉमिनल प्राइसेस पे बने हैं, तो हम कह रहे हैं 23-24 के अंदर 110.5 रुपीज़ के बनेंगे. नाउ अगर ये 110.5 के रुपीज़ के बनेंगे, तो हमारा जो टैक्स है, अगर वो टैक्स 100 रुपीज़ का आया था, तो इस साल टैक्स कितना होगा? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टैक्स buoyancy, या कई बार हम रेवेन्यू buoyancy भी बोल देते हैं. तो इफ इट्स मोर देन 1, तो दैट मीन्स जितना आपका GDP बढ़ रहा है उससे ज़्यादा से आपका रेवेन्यूज बढ़ रहा है. सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज buoyancy. इंडिया के अंदर जो टैक्स buoyancy है वो ठीक ठाक है,
we are but at the same point of time, let's also talk about elasticity. इलास्टिसिटी का भी कंसेप्ट यही है, बट यहाँ पर एक और मेजर कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर टैक्स रेट नहीं चेंज होगा. तो अगर आप कह रहे हो कि टैक्स इलास्टिसिटी, तो आप कह रहे हो कि व्हाट विल बी दी क्या कहते हैं, चेंज इन रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन दी बेस, इन द सेंस कि आप जीडीपी में भी चेंज कर सकते हो, बट नो चेंज इन. यहाँ पर जब आपने जीडीपी में चेंज किया था तो हो सकता है वो जीडीपी में चेंज टैक्सेस के साथ भी हो. जैसे सरकार ने इस साल टैक्सेस चेंज किए ना, आपने देखा होगा इनकम टैक्स कम किया, कस्टम्स कुछ जगहों पे कम किए. तो ऑल इंक्लूडिंग ऑल दोज थिंग्स, व्हेन यू से कि रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो आप कहोगे कि वो बॉयंट है इफ इट्स ग्रेटर देन 1. बट यहाँ पर आप जीडीपी को चेंज करोगे, बट उसमें से टैक्सेस का जो चेंज है वो सारा हटा दोगे. तो विदाउट टैक्स चेंज अगर आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक नेचर. तो if the taxes rises, if the taxes will kind of yield more revenue as the GDP rises, despite the fact that taxes are not changed year to year, those are called as tax elastic taxes, जो अपने आप ही आपको पैसा दे देगा. so that is मतलब आपने टैक्स रेट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने जीएसटी नहीं चेंज किया, मैंने जीएसटी के रेट्स बिल्कुल नहीं चेंज किए, और अगले साल जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स जीएसटी जो है वो इलास्टिक टैक्स है. सो दिस इज अ कंसेप्ट दैट यू नीड टू नो कि इलास्टिसिटी एंड बॉयंसी में फर्क है. ठीक है. सो यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड गवर्नमेंट का जो काफ़ी ज़्यादा फोकस है वो टैक्सेस से पैसा उठाने का होता है. एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट टैक्सेस वर्सेस डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारे पास पैसा किससे आता है, पहले हमारे पास ज़्यादा इनडायरेक्ट से आता था, अब हमारे पास डायरेक्ट से आता है. तो यू कैन थिंक इस टर्म कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 11.3% है. ठीक है. उस 11.3% में से अराउंड 6.3 जो है, 6.1 मान लो 6:5 की रेशो में है, तो 6 इज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एंड 5 इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस. हम हमेशा डायरेक्ट टैक्सेस के फेवर में रहना चाहते हैं, बिकॉज वो इनकम के बेसिस पे, जो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिसकी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा पे करेगा, जो कम पेइंग कैपेसिटी है वो कम पे करेगा. बट इनडायरेक्ट पे जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है, उसमें आपकी इनकम कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स नहीं होता है. ठीक है. सो दैट्स वन मेजर डिफरेंस दैट कम्स हियर. देन कमिंग टू नॉन टैक्स में होगे तो यू हैव इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स. तो ये जो पैसा है, स्पेशली इसके अंदर जो आपका ये इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो है, ये एक मेजर पोर्शन ले जाता है. आई मीन यू नीड टू वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट रिसीट्स कौन सा, हमने कोई लोन दिया होगा जिसका हमें पैसा मिला होगा. तो लोन देना तो एसेट है, बट लोन के बेसिकली आप किसी को लो पैसा दे रहे हो, तो आप अपना एसेट क्रिएट कर रहे हो. बट जब वो पैसा वापस कर रहा है, ईएमआई वापस कर रहा है, तो दैट इज नॉट एन एसेट फॉर यू, दैट इज अ रिकरिंग इनकम फॉर यू व्हिच डज नॉट चेंज एसेट और लायबिलिटी. सो इट बिकम्स अ पार्ट है. सिमिलरली डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो पीएसयूज, पीएसबीएस आपके पास है, एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स. देन यू हैव कैपिटल, basically receipts, which is divided into debt and non-debt. So when we talk about your capital receipts, तो हमारे पास जो नॉन डेट होता है which does not create any liability, and डेट होता है जो which creates any liability. This debt making capital receipts is also called as fiscal deficit. ठीक है. And if you see what is happening in governance is that जो आपका नॉन डेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब ये वाला और ये वाला, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम क्या कहते हैं, हमारा इफ देयर इज, इफ यू थिंक ऑफ इट कि ये अराउंड 27 लाख करोड़ का कुछ है, तो यहाँ से ही 23 लाख करोड़ आता है. यहाँ से जो 4 लाख करोड़ आना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है.
टैक्सेस से 23 लाख करोड़ आ रहा है, तो यहाँ से जो रेस्ट ऑफ द 4 लाख करोड़ जो यहाँ से आना है वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेशली जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट हर साल बोलती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करूंगी। पिछले कुछ सालों में यू विल सी कि बहुत ही बुरा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, कि आप कह रहे हो कि हमारा 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट होगा और हो रहा है सिर्फ 10,000 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा जिसको कई बार हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फिस्कल मार्क्समैनशिप, कि जो आपने टारगेट लिया वो टारगेट आप अचीव कर रहे हो या बिल्कुल ही अचीव नहीं कर रहे हो। तो सपोज इट्स समथिंग लाइक कि आप बोल रहे हो कि मेरे सेमेस्टर में क्या कहते हैं यूपीएससी में बोलते हैं, आप कह रहे हो कि यार मेरा तो फर्स्ट 10 रैंक्स में नाम आ जाएगा और आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज पुअर प्लानिंग एंड पुअर एग्जीक्यूशन। सेम चीज जो है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर, वेयर यू आर सेइंग कि फिस्कल मार्क्समैनशिप, यू आर सेइंग कि आप प्लान कुछ कर रहे हो और हो बहुत ही कम रहा है। सो दैट इज पुअर फोरसाइट और पुअर फोरकास्टिंग। तो व्हेन इट कम्स टू दिस पोर्शन तो बहुत ज़्यादा पुअर फोरकास्टिंग है। बट इस साल के बजट के अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस इसके ऊपर, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसके ऊपर फोकस था कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। देन ये हो गया, फिर उसका डेट हो गया। डेट आप मार्केट से कई जगह से उठा सकते हो। देन यू हैव एक्सपेंडिचर्स में सरकार जो है पिछले कुछ सालों से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ड्रॉप कर रही है। इस साल सरकार ने कुछ स्कीम्स पे भी पैसा कम किया है, सब्सिडीज पे भी पैसा कम किया है। फॉर एग्जांपल फूड सब्सिडी पे गवर्नमेंट ने पैसा बचाया इस साल, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पे पैसा बचाया इस साल। इंटरेस्ट पेमेंट इज समथिंग विच इज अ कमिटेड एक्सपेंडिचर, यू कैन नॉट रिड्यूस इट, क्योंकि हमने जो पुराने लोन लिए हैं, ये जो अपने लोन लिए हैं आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ट्रांसफर स्टेट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उसको अब गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रहा है, और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने इस साल कहा है कि मैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 33% से बढ़ा रही हूँ, फ्रॉम 7.5 लाख करोड़ टू अराउंड 10 लाख करोड़। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है यहाँ पर। देन कमिंग टू की कंसेप्ट, यू हैव द कंसेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर अभी जो फिस्कल डेफिसिट है इसको यहाँ पर 6.4 के अलावा ये फर्दर डाउन गया है। जो आपका बजट एस्टिमेट अब आया है, the budget estimate that you have for 2024 fiscal year is 5.9%। तो आपने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन से अपना फिस्कल डेफिसिट गिराने की कोशिश की। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग्स व्हिच इज आल्सो डिफाइंड एज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस minus revenue receipts minus non-debt making capital receipts. Again, I have explained that in the video. Please watch the video. ये मैंने आपको ट्रेंड भी बताया वीडियो के अंदर, यू कैन वॉच दैट ट्रेंड। तो गवर्नमेंट इस साल अपना फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर काम कर रहा है, सो दैट बाय 25-26 इट कैन रीच द टारगेट ऑफ 4.5% फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये गवर्नमेंट का टारगेट है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अचीव करना शुरू कर दिया। देन रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये अब गवर्नमेंट ने गिरा के इसको 2.9% कर लिया है। ठीक है, ये जो रिवाइज एस्टिमेट, इसका जो रिवाइज एस्टिमेट था ये 4.5% था, तो इसको बहुत तेज़ी से सरकार ने गिराया है और इसको अब 2.9% है। दिस इज द बजट एस्टिमेट ऑफ 2000 FY24। विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस एज वेल। देन यू हैव प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली जब आप क्या कहते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट में से, फिस्कल डेफिसिट तो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, बट ये भी हो सकता है फिस्कल डेफिसिट का रीज़न की पीपल आर बोरोइंग, आई मीन द गवर्नमेंट हैज़ बोरोड एंड गवर्नमेंट ने आप बोरो कर रही है। क्यों बोरो कर रही है? क्योंकि उसको किसी और का इंटरेस्ट पे करना है। तो कई बार हम इसलिए भी बोरो करते हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए, बट अगर हम वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दें अपनी बोरोइंग में से तो हमारे पास फ्रेश बोरोइंग्स आ जाएंगी विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी डेफिसिट। और इस बार ये 1% से हुआ है। we'll just have a look at it. And there's something called as effective revenue deficit, which is basically revenue deficit minus grants to states for capital creation, क्योंकि ये भी जो grants हैं ये अल्टीमेटली कंट्री के लिए तो कैपिटल एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं। सो ये बट ये आजकल ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, बट यू शुड नो द डेफिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस समथिंग कॉल्ड एज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, which is nothing but capital expenditure of the government plus this grants to states
for capital creation, which becomes effective capital expenditure. Now let's have a look at the when we talk about the budget per se, so we'll be talking about कि कौन से region में क्या हुआ है. So there are certain themes that we need to know कि budget के ये themes हैं, and you need to read on those themes. So now again, I'll not be hand holding you. I'll be giving you those themes, and then you're supposed to read all those themes. So हमने अभी ये budget estimate, actuals, revised estimates इन सब के बारे में बात करी. These are the figures that I was talking about. Fiscal deficit 5.9% आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, पिछली बार 6.4% था. Then आप रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2.9% अचीव करने की कोशिश करो, पिछली बार इंक्रीज होके 3.8 आपने सोचा था, बट 4.1 हो गया था. एंड प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 3% से 2.3% है. सो दीज आर दी एटलीस्ट ये दो फिगर्स जो है ये तो आपको पता होनी चाहिए. ये फिगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इतना मैटर नहीं करता इन जनरल. कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ टर्म विच केम लास्ट ईयर. ठीक है. सो ये आपका वो है. By the way, if you see last to last year's mains, तो एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आया था, explain the revenue side of the budget and the capital side of the budget. So this can become important even for other aspects. Then you have other things कि अच्छा बजट का रुपी कहाँ से आ रहा है, रुपी कहाँ जा रहा है, all of this. but ये आपको पता होना चाहिए, ये दो डायग्राम्स आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है. डेफिसिट्स मैंने आपको बता दिए. Then deficit trends, you can have a look at deficit trends. Financing कहाँ से हो रही है. Then ये डिटेल है आपका रेवेन्यू साइड का, अगेन रेवेन्यू रिसीट्स का. और फिर आपका ये जो मैं आपको बता रहा था, देखो 11.1% आप बोल रहे हो, और जिसमें से 6% डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, 5.1% इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है. सरकार का भी पैसा कहाँ से आ रहा है. देखो सरकार, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है वो अराउंड 8 लाख करोड़ जो है वो रिसीव कर रही है. ठीक है. और उस 28 लाख करोड़ में से 23 तो टैक्स रेवेन्यू से ही आ गया, 3 जो आ गया वो नॉन टैक्स से आ गया, और सिर्फ 0.8 उससे. तो अराउंड 3.8 जो है वो आ रहा है नॉन टैक्स प्लस नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स. तो ये जो है वर्सेस दिस बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, और गवर्नमेंट इसको तो अचीव ही नहीं कर पाता है. ठीक है. तो ये कई बार इसको प्लग करने के लिए कई बार और बोरो करना पड़ जाता है. ये कई बार हम सोचते हैं कि हम इसमें इतना मिल जाएगा, बट इतना भी नहीं मिलता. कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो, सरकार का पैसा कहाँ खर्च होता है. दिस इज अ गुड ग्राफ टू एनालाइज. और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो रहे हैं. दैट्स इट. So that's it in the budget. If you want to read this, you can read ये वाले portions कहाँ spend हो रहा है, कैसा हो रहा है. So you can see interest payment सबसे ज़्यादा पैसा ले जाता है हमारा, फिर डिफेंस ले आता है, सब्सिडीज ले आता है. So you can have a look at these items. Now let's look at the budget the way that I personally like. So let us talk about the major themes of the budget. ये मेजर थीम्स आपको हर मतलब जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे आपको ये सारी थीम्स मिल जाएंगी कि कोई ना कोई थीम को जरूर वो आर्टिकल टच जरूर कर रहा होगा. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज थीम्स व्हिच द बजट हैज एज काइंड ऑफ टच. तो आई विल सेंड यू माय डिटेल्ड नोट्स एज वेल. ठीक है. मैंने ऑलमोस्ट आधे पेज में अभी बना दिया है, बट आई वुड सजेस्ट कि यू मेक योर ओन नोट्स एज वेल बजट के ऊपर, बट दे शुड बी एज क्रिस्प. जैसे मैं क्रिस्प नोट्स बनाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही चीट नोट्स टाइप बनना चाहिए, सो दैट जब बाद में रिवाइज कर रहे हो मेंस से पहले तो आपको एक ही पेज एक ही साइड पढ़ना हो और हो गया. आपको बजट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. आपको पता है कि सारी चीज़ें मैंने यहीं पे पढ़ ली हैं. स्पेशली पीपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल. तो IES में भी ऐसे ही और IAS में भी ऐसे ही आपका नोट होना चाहिए. सो लेट मी गिव यू व्हाट आई हैव रिटन कि मेजर थीम्स क्या है. मेजर थीम्स जो है सरकार की वो है, मेजर थीम्स जो है पहले है कि वो कैपेक्स के ऊपर है. ठीक है. हम कैपेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस जो है इस साल चेंज होकर कैपेक्स के ऊपर हो गया है. 33% जो है पैसा बढ़ा है इसके अंदर, और आज तक का सबसे ज़्यादा कैपेक्स गया है इस साल के बजट के अंदर. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ने कंप्रेस किए हैं. इनफैक्ट फॉर every 1 rupee that the government has borrowed,
तो सपोज गवर्नमेंट ने 1 रुपया बोरो किया, ठीक है, टिल लास्ट फ्यू ईयर्स और इवन टिल से FY19 मतलब 18-19 के बजट तक, इस 1 रुपया बोरो करने में आपका 70 पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है आपका कोई, आप सब्सिडीज में पैसा खर्च कर रहे हो, आप पॉपुलिज्म में पैसा खर्च कर रहे हो। बट इस साल के बजट के अंदर ये जो है चेंज होके 48 पैसा हो गया। पिछले कुछ सालों में 60 पैसा तक पहुंच गया था, अब FY23 में 63 पैसा था, अब ये 48 पैसा हो गया। तो दैट मीन्स आप 52 पैसा आउट ऑफ एवरी बोरोइंग दैट यू डन, आपने 52 पैसा डाल दिया इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा कैपेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस है, ठीक है। हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड, जो आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि दे समथिंग कि अमृत काल के अंदर हम सप्त ऋषि जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं। अब ये सप्त ऋषि क्या है, आई मेड न्यूमेरिक आउट ऑफ इट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन यू हैव this M is for last mile, reaching the last mile. Then you have unleashing the potential, and then you have green growth, youth power, and हमारा financial sector, ठीक है। So this is what you have, 1 2 3 4 5 6 7। So ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, ये हमारा जो है सप्तऋषि है। सो हर एक के अंदर का आपको थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस, वी विल क्विकली डिस्कस व्हाट दिस सप्तऋषि इज। इफ यू डोंट हैव टाइम टुडे, विल डिस्कस इट टुमारो कि ये सप्तऋषि के अंदर क्या हुआ है। फिर द अदर थिंग इज, जो एक मेन फोकस रहा है वो ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर। तो ग्रीन सेक्टर के लिए और एनवायरनमेंट के सेक्टर के लिए हमने क्या क्या किया है। देन टैक्सेस का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, टैक्सेस बॉयलेंट है या नहीं है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। नॉन टैक्सेस में, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस में आपके जो क्या कहते हैं, साथ में जो नॉन डेट मेकिंग रिसीट्स है, वो डिसइन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो और एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हो, वो इतना रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। टैक्सेस में आपने जो मेजर चेंज किया है वो क्या किया है, पर्सनल इनकम टैक्स जो है आपने सबको काइंड ऑफ नच कर दिया है न्यू टैक्स रेजिम में, जिसमें सबकी सेविंग्स होंगी, मिडिल क्लास की सेविंग होगी। मिडिल क्लास की सेविंग होगी तो वो अल्टीमेटली डिमांड करेंगे, तो उससे वजह से डिमांड इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर। देन हम फिस्कल मैथ के बारे में बात करेंगे सरकार की। फिस्कल मैथ में सरकार कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट कैसे चल रहा है। सो ये है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है। देन we'll come to certain areas like गवर्नमेंट ने सब्सिडीज में क्या किया है, सब्सिडीज एंड सोशल सेक्टर। सो वी विल सी कि सरकार ने कुछ स्कीम्स में पैसा एकदम कम किया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फूड सब्सिडी कम करी है, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करी है, गवर्नमेंट ने NREGA को पैसा कम दिया है, गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी का जो हमारा वो है नेटवर्क है, उसको जो रियल अमाउंट पे जा रहा है वो कम हुआ है, ठीक है। तो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जो है बहुत कांस्टेंट ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो है ये काइंड ऑफ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस साल के बजट के, जो आप क्रिटिकल एनालिसिस में डालोगे कि ये सब में पैसा कम हुआ है। और कुछ चीज़ें इनमें से कंटेंजेंट भी है। फर्टिलाइज़र और फूड हमारे पास, हम ज़रूरी नहीं है कि आप अज्यूम करो कि कमी होगा तो कम आपने रखा है तो कमी होगा। हो सकता है फर्टिलाइज़र प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाए, हो सकता है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए, तो अपने आप आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकता है। एंड जो दूसरी चीज़ है, कुछ एरियाज में बढ़ा है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है सरकार ने पैसा ज़्यादा डाला है, काफ़ी सिग्निफिकेंट पैसा डाला है। और जल जीवन योजना के अंदर भी टैप्ड वाटर जो है उसके अंदर डाला है, जिसको हम टैप्ड वाटर हम कहते हैं कि किसी के पास अश्योर्ड वाटर तब है जब वो 55 लीटर्स पर डे पर पर्सन अगर किसी घर में आ रहा है थ्रू आउट द डे। सो दैट इज कॉल्ड एज कि उसके पास कंप्लीट एक्सेस टू वाटर है। सो वो कंप्लीट एक्सेस टू वाटर अभी भी नहीं है लोगों के पास, तो हम उसको स्पेशली इलेक्शन ईयर में हमने टैप वाटर का सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें। देन सिक्स्थ वी कैन टॉक अबाउट MSMEs।
ठीक है, उनके लिए क्या किया गया बेसिकली कि एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसमें पैसा और डाला गया जिससे लोन्स मिल जाए और क्रेडिट ऑफटेक जो है इनका बढ़ जाए। देन 7 हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कीम्स आई हैं। देन 8 वी कैन टॉक अबाउट एक्सटर्नल विच इज कस्टम्स ड्यूटीज के अंदर क्या किया है। ठीक है, तो ये हमारे मेजर जो है थीम्स है। अगर आप कोई भी अगर आप वो पढ़ोगे तो इनवेरिएबली इनमें से कोई एक थीम जरूर पकड़ रहा होगा बजट हर एक आर्टिकल। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डिस्कस दी क्योंकि वो जो हमारा सप्तऋषि वाला कंसेप्ट है वो कई बार आएगा, तो लेट्स क्विकली कवर दैट। तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि क्या किया है सरकार ने, तो हम पहले बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स जो ऑलरेडी लॉन्च है उसके ऊपर काम किया, बट साथ में जो मिलेट्स है इट्स एन एग्जांपल कि अब अफोर्डेबल है हर किसी के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आप फूड सिक्योरिटी के साथ साथ आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी कर सकते हो। उसको उसका नाम रख दिया गया अन्नाश्री। ठीक है, एक ऑनररी नाम मिला है उसे। और प्लस फिर जैसे एक ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, फिर एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है लोगों के एजुकेशन के लिए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसको आपने 20 लाख करोड़ बोला है कि एग्रीकल्चर वाले लोग पैसा उठा पाए। सो देन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आपने काम किया है। तो दिस इज एसेंशियली योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो इसके अंदर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रेलवेज पे होना शुरू हुआ है। इस साल रेलवेज पे अराउंड 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ डाला गया है और रोड्स और पोर्ट्स पे तो सरकार खर्च करती है। और ये जो कैपेक्स जो सरकार का जा रहा है, जो आपने कहा है कि 10 लाख करोड़ रुपीज़ का होगा, वो जो 10 लाख करोड़ रुपीज़ का उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जा रहा है। देन you have connecting to the last mile or reaching to the last mile। when you say reaching to the last mile, तो जो बिल्कुल वल्नरेबल लोग हैं, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबल लोग हैं और जो प्रिमिटिव कहते हैं ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपके, उनके लिए, बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम होती थी, उसकी जगह पे अब हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम ले आए हैं जो 500 ब्लॉक्स में रन कर रही है। और ये जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए आप एक नया मिशन भी लेके आए हो फॉर देयर बेसिक नीड्स। देन कम्स जो मैं आपको बताता, अनलीशिंग दी पोटेंशियल। अनलीशिंग दी पोटेंशियल के लिए गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के बहुत सारे स्कीम्स लेके आए। फॉर एग्जांपल मिशन कर्मयोगी है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए है, और पब्लिक क्या कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक पीडीआई जो हमने बात करेंगे जिसमें ये आपका आधार और पैन कार्ड और बाकी सारी डिजिटल सर्विसेज, केवाईसी, ये सारी जो है डिजिटल लॉकर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका पब्लिक आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जीएसटी पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ई श्रम फॉर वर्कर्स, ठीक है, जीएसटी पोर्टल, ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी पोर्टल्स हैं ये सारा आपका पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इससे आपको पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है और गवर्नमेंट गवर्नेंस के भी रिफॉर्म्स कर रही है। देन कम्स योर ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ। अब ग्रीन ग्रोथ में आपने क्या कहा, आपने कहा है कि हम क्या कहते हैं 2070 तक पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम अपने आप को नेट ज़ीरो कर लेंगे। और G20 के ऊपर भी इसमें काफ़ी फोकस होगा। देयर इज़ अ मिशन कॉल्ड एज मिशन लाइफ। आई वुड want you to read about it। livelihood, I mean living with the environment basically। ठीक है, तो आप अपना environment oriented जो आपका लाइफस्टाइल है वो आप वो करोगे। लाइफ, इसका फुल फॉर्म भी है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें चेंज करोगे जो एनवायरनमेंट प्रो। फॉर एग्जांपल वन स्मॉल एग्जांपल कुड बी गोइंग वीगन which is a lifestyle for environment। So this is one thing। then apart from that, national green hydrogen mission के ऊपर मैं आपको चाहता हूँ पढ़ो ग्रीन हाइड्रोजन। देन ऑल्सो रीड कि अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन है कोई और फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, समथिंग कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन ऑल्सो क्या। तो रीड अबाउट व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन ऑल्सो रीड अबाउट मिस्ट। ठीक है,
This is mangrove initiative for shoreline habitat and tangible income. So read about all of this. और अगर ये जो आप इस साल दे रहे हो तो एक बार उसके मैंग्रोव्स के बारे में भी पढ़ना, कहाँ कहाँ इंडिया के हैं. एंड देन यू हैव ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन बॉन्ड्स एंड ग्रीन क्रेडिट. ग्रेट ग्रेट पॉइंट्स. जो गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट एक्ट को अमेंड करके इसके अंदर डालना चाह रही है ग्रीन क्रेडिट फॉर कंपनीज which are working I mean in environmental friendly manner. तो रीड अबाउट ग्रीन क्रेडिट्स की क्या करेंगे. अनलीशिंग यूथ पावर. बेसिकली यूथ पावर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं. हमने NEP इस बार लेके आए हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आए हैं. यूथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये लेके आए हैं. रीड अबाउट दिस, जिसके अंदर वो बात मॉडर्न उस पर हो रही है, रोबोटिक्स, AI, इन सब के साथ हम वी आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर्स. एंड फाइनली जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में नाउ द बैंक्स हैव बीन वेल कैपिटलाइज्ड एंड देयर इज डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ. तो अब पॉइंट है कि अब ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा लेना चाहिए बिकॉज द एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ मनी, उनकी बैलेंस शीट्स भी ठीक है तो वो पैसा लेके अब इन्वेस्ट करें. तो दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर. तो आपकी जो मेजर थीम्स होंगी वो यहीं पे कहीं पे बात कर रही होगी बजट के अंदर. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आर्टिकल्स. सो जब आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता चल रहा है. फिस्कल डेफिसिट कैसे रिड्यूस हुआ और कहाँ से इनकम आ रही है. ठीक है. इसके अंदर फिर वो आउटलेस के बारे में बात करेगा, न्यू स्लैब्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, और सब्सिडीज़ जो आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहा है. फिर PM किसान के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है इस साल उसके बारे में बात कर रहा है. तो अगेन ये पूरा आर्टिकल आपको एक अच्छी समरी दे देगा कि हाउ थिंग्स हैव मूव्ड इन जनरल. देन जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं वो ओवरव्यू दे रहे हैं. सिमिलरली ये वाला आर्टिकल जो है ये भी एक ओवरव्यू दे रहा है. विल डील विद दीज आर्टिकल्स इन डिटेल टुमारो, बट आई वांट यू टू गो थ्रू देम वन बाय वन. देन सिमिलरली ये भी आर्टिकल जो है वो आपको सब्सिडीज़ की पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट अगर कह रही है कि मैं फिस्कल डेफिसिट कम कर रही हूँ तो कैसे कम कर रही है. दैट मीन्स गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ तो इतने बढ़ नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्या चीज़ से अपना बोरोइंग कम कर रही है. तो वो बोरोइंग दिखा रहे हैं कि कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है टू कंपनसेट फॉर द लेस राइज इन द टैक्स इनकम. सो ये यहाँ पर यही बात कर रहे हैं डेफिसिट से. टैक्सेस अगेन वही सेम टैक्सेस. देन रशिया यूक्रेन वॉर यील्ड्स. credibility of fiscal math, very important article. This is a very important article कि सरकार की जो फिस्कल मैथ है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है. तो रीड अबाउट दिस कि फिस्कल मैथ कैसे वर्क करी है. ठीक है. देन जो नेक्स्ट आर्टिकल है इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स और राइटर्स, रतन रॉय. सो इनका भी काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस है. तो ये जो लास्ट वाला आर्टिकल था और ये वाला ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करो तो यहाँ से पॉइंट्स लो, और जब आप पिछला वाला आर्टिकल पढ़ो तो वहाँ से क्रिटिकल एनालिसिस करो. सो दीज आर आर्टिकल्स विच आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे आर्टिकल. और फिर उसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर पे चले जाते हैं. ये एग्रीकल्चर के ऊपर आर्टिकल है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या किया है सरकार ने. देन कम्स परिणाम विच इज़ अगेन फॉर एग्रीकल्चर. इस स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ना, मैंने इसीलिए डाली है कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. फिर NREGS का कट बहुत सिग्निफिकेंट कट हुआ है, उसके ऊपर आर्टिकल है. एंड देन वो सप्तऋषि वाली ग्रीन ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की ग्रीन ग्रोथ की, वो यहाँ पर आ जाती है. ग्रीन हाइड्रोजन एंड एनर्जी ट्रांजिशन, ये सारी स्कीम्स आपको अच्छे से पढ़नी है फोक्स. डोंट लीव दी स्कीम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर. एंड देन फाइनली टैक्स, आपने डेवल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ है. सरचार्ज जो है वो कम किया है आपने, बट डेवल्यूशन और स्टेट्स को इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया है इस साल भी. सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन that we are having today. For tomorrow's session, so we will not have a session tomorrow. We'll have one session on Monday. That will be an open session,
And from Tuesday onwards, folks, we'll have our morning sessions, which will be regular sessions. In general, जो मैं आपको बता रहा था, the mentorship that we are going to start, वो Monday से शुरू हो जाएगा. And we'll start off with the discussion on these taxes Monday को, और Tuesday को हम उससे शुरू कर सकते हैं. Tuesday को we'll start it. Monday को we'll have one last open session on these articles. So as to say, मैं इसमें articles में और articles add कर दूंगा for you to read. So weekend पे make good use of your weekend. And there are 2 questions. Yes, the mentorship batch for 4 to 5 a.m. It'll be handled by Folio, so the fee will be there. And Kumar, you can type out your question. And people who will